السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول روح کا رشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے انا الیاس نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ آج کے دور میں چونکہ گھونگھٹ کا رواج نہیں، لہٰذا حورین بھی اس تکلف سے آزاد تھی۔ وہ شرم و حیا جو کچھ دیر پہلے ایک دلہن ہونے کی وجہ سے تھی، اب وہ مفقود تھی، اور اس کی جگہ پریشانی بڑھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، آخر اور کتنی دیر ایسے بیٹھنا پڑے گا؟ ابھی وہ پوری طرح سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی اجلت میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے حورین کی ساس بھی داخل ہوئیں۔ حدید، میری بات تو سنو بیٹا۔ وہ پریشان صورت دے کر حدید سے مخاطب تھیں، جو اس بیڈ روم کے ساتھ ملحق ایک روم میں جا چکا تھا، جو یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ سوری ماں، لیکن میں مزید ڈرامہ پلے نہیں کر سکتا۔ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آتے ماں سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی شیروانی کی جگہ اب جینز ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے میں جوگرز۔ بیڈ کے بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوگرز پہننے لگا۔ بیٹا دیکھو، تحمل سے میری بات سنو۔ بس 2 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر بے شک چلے جانا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سائرہ بیگم، جو کہ حدید کی ماں اور حورین کی ساس تھی، التجائیہ لہجے میں حدید سے کہنے لگیں۔ ماں، فار گاڈ سیک، جتنا تماشا آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ناؤ اٹس اوور۔ حدید نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ اور کہنے سے روک دیا۔ حورین اس سارے قصے میں خاموش تماشائی تھی۔ وہ تو اس شوق سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آغاز کس انداز سے ہو رہا ہے۔ ابھی تک حدید اور سائرہ بیگم حورین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ حدید، میں کل لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سائرہ بیگم نے بے چارگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں مزید آپ کی کسی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بات ختم کر کے ماں کا ماتھا چوما اور بیک نگاہ بھی حورین کی سجے سنورے روپ پر ڈالے بنا جیسے آیا ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ بیگم نے حدید کے نکلنے کے بعد صدمے سے نکلتے ہوئے ایک نظر حورین کے شاکڈ چہرے پر ڈالی تو بے اختیار اس کے پاس آئیں، مگر کشمکش میں تھیں کہ کیسے اس کو حدید کے اس ناروا سلوک کے بارے میں بتائیں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی حورین کو جیسے ہوش آیا اور وہ صدمے سے بس اتنا ہی بول پائی، آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ حورین کے پوچھتے ہی سائرہ بیگم نظریں چراتے اور قدرے ہچکچاہٹ سے بولی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو کہ چینج کر کے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حورین کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو جاؤں؟ میرا شوہر مجھے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جس کو میرے وجود کی پرواہ نہ ہوئی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اور آپ مجھے سونے کا کہہ رہی ہیں۔ انتہائی بے ربط جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسو۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ یکدم چٹانوں کی سی سختی اس کے چہرے پر در آئی۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آنٹی، مجھے سچ سچ بتا دیں، اس سب کے بعد اب کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ شادی حدید کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ سو اب آپ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ جتنی میری زندگی برباد ہونی تھی ہو گئی۔ وہ کس میں انوالو ہیں، اور اگر ہیں تو یہ شادی کیوں کروائی آپ نے؟ میرا اور میرے پیرنٹس کا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ کچھ مت چھپائیں پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ نہیں نہیں بیٹا، حدید کسی میں انوالو نہیں ہے، ایسا کچھ۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ پلیز آنٹی، اب بھی آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے آپ اپنے بیٹے کا پردہ رکھ رہی ہیں۔ حورین نے بے اختیار ان کی بات کاٹ کر غصے اور رنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میرا یقین کرو وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اوکے؟ اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر پھر تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آنٹی، یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا، مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں جتنا اپنی غلط فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں۔
सुबह उठकर अपने सर को दबाते हुए हुरैन ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि उसको अपने और हदीद के रिश्ते को एक चांस देना है, और फिर आखिर एक लड़की की जिंदगी में समझौते के अलावा होता भी क्या है। मगर उसने ये भी सोचा कि खुद को गिराना भी नहीं, कि अपनी नजरों में फिर ना उठ सके। ऐसे बावकार तरीके से उसको अपनी तरफ लाना है कि शर्मिंदगी का ज्यादा मार्जिन उसके हिस्से में आए। अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। यस, कम इन। सायरा बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इनको देखते साथ ही हुरैन मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी जानिब बढ़ी। उन्होंने उसे साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अब मेरी बेटी ठीक है ना? उन्होंने तशवीश से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए इन्हें तसल्ली दी। शुक्र है, मैं रात भर बहुत परेशान रही, उन्होंने तफक्कुर से कहा। आंटी, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी इसका हल निकालेंगे। बेटा, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरा मान रख लिया। प्लीज आप आइंदा कोई शुक्रिया वाली बात नहीं करेंगी। हुरैन ने उनको इस तकलीफ से निकालना चाहा जो हदीद ने दी थी। तुम आज से मुझे मम्मी कह सकती हो, और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी। नाश्ते के फौरन बाद हुरैन के पेरेंट्स मिलने आ गए। बेटा, मुझे तो जब से हदीद के जाने का पता चला मैं तो परेशान हो गई थी। हुरैन की वालदा ने तशवीश से कहा। अरे नहीं मामा, परेशानी की कोई बात नहीं। आपको पता तो है इनकी जॉब ही ऐसी है। बस सुबह कॉल आ गई कि ज़रूरी ऑपरेशन है, सो सुबह ही निकलना पड़ा। हुरैन ने इनको तसल्ली करवाई। सायरा बेगम ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा, जिसने खूबसूरती से उनका पर्दा रखकर मजीद सवालों से इनको बचा लिया था। हाँ बेटा, फौजी हो या कमांडोज, इनको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी होगी तुम्हें। अल्लाह हदीद को उसके मकसद में कामयाब करे। वलीमा तो होता ही रहेगा। क्यों भाई साहब? हुरैन के पापा अयाज साहब ने हुरैन को समझाते आखिर में हदीद के वालिद रियाज साहब से तायीद चाही। बिल्कुल जनाब, रियाज साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हदीद को उम्मीद थी कि सब सो चुके होंगे। मेन गेट चौकीदार ने खोल दिया। मेन डोर की चाबी उसके पास हुमा वक्त होती थी। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर आया और जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे का नाप घुमाया तो उसे लॉक देखकर वो हैरान हुआ। पिछले कुछ दिन उसने इतनी जहनी और जिस्मानी मुशक्कत की थी कि वो ये फरामोश कर चुका था कि उसकी शादी हुई थी। वो हैरान होता नीचे गया। लाउंज में सब कमरों की चाबियों का गुच्छा मौजूद होता था। मतलूबा चाबी निकाली। जैसे ही अंदर आया तो नीलीगू बल्ब की रोशनी में किसी को अपने बेड पर सोते पाया। हैरान होता आगे बढ़ा और हुरैन पर नजर पड़ते ही अपनी जबरदस्ती की शादी याद आई। हदीद के खूबसूरत नकुश तन गए। ओह, ये ढीठ यहीं मौजूद है। गुस्से से उसने अपना बैग इतनी जोर से जमीन पर पटका के दरो दीवार हिलकर रह गए। हुरैन तो फिर बहुत कमजोर आसाब की मालिक थी। हुरैन हड़बड़ाकर नींद से उठी। जूं ही सामने नजर गई तो हदीद को सामने देखकर उड़े हुए हवास कुछ बहाल हुए। यकदम दुपट्टे का ख्याल आया। सरे से सरहाने पड़ा दुपट्टा उठाया। हदीद इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक सोफे पर बैठा जोगर्स उतारने में ऐसे महव था जैसे इसके अलावा कमरे में कोई ना हो। कमरे में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, खास तौर पर रात के इस वक्त जब लोग सो रहे हों, लेकिन अफसोस इतने आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद लगता है मैनर्स आपको छूकर भी नहीं गुजरे। हुरैन ने नींद से इतनी बुरी तरह उठ जाने पर खोलन हदीद पर लफ्जों की बौछार की सूरत निकाली। ये इनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात और बातचीत थी। हदीद ने कुछ हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात समेत उसके मगरूर चेहरे पर निगाह डाली। बिलाशुबा हुरैन की खूबसूरती को उसने दिल में सराहा। खूबसूरत काली भंवर सी गहरी आंखें, खड़ी नाक, गंदुमी शफाफ रंगत, भरे भरे होंठ और लंबे घने कमर को छूते बाल जिनको लेयर्स में कटवाया गया था उसको निहायत पुरकशिश बनाते थे। मगर इसके सख्त अल्फाज बुरी तरह उसकी हस्ती को हिला गए थे। लिहाजा उसने दो हर्फ उसकी खूबसूरती पर भेजे और पुकारा। घर मेरा, कमरा मेरा, मेरी मर्जी में यहाँ तोप चलाकर आऊं या खामोशी से? आप होती कौन है मुझे मैनर्स का ताना देने वाली? हुरैन ने एक इस्तेज़ाइया नज़र हदीद के खूबसूरत मगर किस कदर गसीले चेहरे पर डाली। 6 फुट 2 इंच हाइट, वर्जिशी जिस्म, घने बाल, फौजी हेयर कट जो माथे पर बिखरे हुए थे, हेजल ग्रीन आंखें जो मुकाबिल को चारों शाने चित कर दें, खड़ी नाक, भींचे होंठ और दाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। गुस्से से उसकी जानिब घूर रहा था। वैसे तो सुना है कि सीक्रेट सर्विसेज वालों का आईक्यू गजब का होता है, मगर आपको देखकर ना सिर्फ अफसोस बल्कि हैरत है कि उन्होंने आपको रख कैसे लिया, जिसको ये याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों और किस हैसियत से हूँ। हुरैन ने उसे तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट समेत तंजिया निगाहों से देखा।
जो अभी तक उसी के बेड पर विराजमान बैग से टेक लगाए और उसकी के ब्लैंकेट में मजे से फसकड़ा मारे बैठी उसको चैलेंजिंग निगाहों से देख रही थी। जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं, माइंड इट माई सो कॉल्ड वाइफ। तंजिया मुस्कुराहट समेत वह हुरैन पर उसकी हैसियत वाजे कर गया था। सो जब इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं तो आपका भी मेरे रूम में कोई काम नहीं, अपना ठिकाना आप खुद ढूंढे। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो आप मुझे यहाँ नजर ना आए, अदरवाइज नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अपना बैग और जोगर्स उठाते वो हुरैन को वार्न करता ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। अब उसके आने से पहले हुरैन को कोई हल निकालना था। बेअख्तियार मम्मी की वो बातें याद आईं जो उन्होंने हदीद के हवाले से शादी की पहली रात बताई थी। बेटा, हदीद किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी उसकी पसंद को अपनी बहू बनाती। इनफैक्ट वो सीक्रेट सर्विसेज के साथ जुनून की हद तक अटैच है। इसका मानना यह है कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है कि जिसमें बीवी और उससे मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। वो इस रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकारी है। हमारा क्या है, आज हैं तो कल नहीं, मगर एक माँ होने के नाते मैं उसको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकती थी। अभी तो हम हैं तो उसे परवाह नहीं, मगर जब हम नहीं रहेंगे तो बहन भाई कब तक उसके साथ जुड़े रह पाएंगे। बस इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती ये कदम उठाया, मगर मुझे पूरा यकीन है जिस अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं वो जल्द ही हदीद का दिल तुम्हारी जानिब मोड़ेगा। बस तुम मेरा इतना साथ दो कि कुछ टाइम सब्र से उसको बर्दाश्त करना, मैं पूरी तरह उसकी ब्रेन वॉशिंग करूंगी। बस कुछ देर की बात है, एक माँ की इल्तजा समझ लो। सब बातें दोहराते उसने खुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं हुरैन, कभी ना कभी यह बंदा तुम्हारी हैसियत मानेगा, बस कमजोर नहीं पड़ना, वरना इन सब को कैसे फेस करोगी, खास तौर से अपने पेरेंट्स जिन्हें अपनी खुशगवार जिंदगी की तसल्ली दी है। बी ब्रेव मिस्टर एजेंट हदीद, गेट रेडी फॉर अ न्यू मिशन। खुद को तसल्ली देते जल्दी से बेड से उठी, अलमारी से सिंगल बेड ब्लैंकेट निकाला और अभी सोफे पर लेटकर कंबल में गुम होने ही वाली थी कि हदीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। इसको कमरे में मौजूद देखकर तैवरी चढ़ गई। शक्ल से तो कुछ सेंसेबल लगती है, मगर हरकतें बताती हैं कि काफी ढीठ किस्म की बंदी हैं आप, जिन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बेड पर दराज होते हुए बड़ी गहरी तंजिया नजरों से हदीद ने उसे देखा। हुरैन ने अगर हदीद की मम्मी से इनके साथ देने का वादा ना किया होता तो अभी सब छूट छाड़ निकल जाती। जी बिल्कुल, आखिर इतने दिनों से इस कमरे में हूँ, यहाँ रहने वाली शख्सियत का कुछ तो असर होना था, बाकी रह गई मेरी हैसियत। और इस कमरे में रहने और ना रहने की बात तो इसका जवाब आप मम्मी से लीजिएगा। मेरा जवाब शायद तसल्ली बख्श ना हो। गुड नाइट। हदीद के दिमाग को मजीद भड़काते हुए हुरैन ने मजे से करवट दूसरी जानिब ली और कंबल सर तक ओढ़ लिया। स्टूपिड, देख लूंगा तुम्हें। दांत पीसते हुए हदीद ने उसकी पुश्त को घुरा और सोने की कोशिश की, जो शायद इतनी थकावट के बावजूद मुश्किल लग रहा था। और वजह वो वजूद था जिसने हदीद को अपनी हैसियत का बताकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था। हुरैन बेटा, क्या हदीद रात में घर आया था? सायरा बेगम ने चाय बनाती हुरैन से पूछा। जी मम्मी, लेट नाइट आए थे। हुरैन रुख मोड़े चाय निकालते हुए बोली। शुक्र, कोई बात हुई? उन्होंने राजदारी और बड़े इश्तियाक से हुरैन से पूछा। मम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं इनकी महबूब बीवी हूँ और आते ही वो मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। बस हाथ पकड़कर कमरे से निकालने की कसर बाकी रह गई थी। हुरैन ने इनकी खुशी से तमतमाते चेहरे पर दुख के साए लहराते देखे। उन्होंने खुद को संभालते उसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मेरी जान, तुम बस हौसला ना हारना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर पड़ने वाली लटों को पीछे करते हुए कहा। एक आप ही तो हैं मम्मी जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हुरैन ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी। वाओ, व्हाट अ रोमांटिक सीन। हदीद ने किचन में दाखिल होते हुए माँ को देखते हुए कहा। बदतमीज ऐसे कहते हैं। सायरा बेगम ने आगे उसके शाने पर चिप लगाई। उसने बहुत मोहब्बत से इन्हें बाजों के हिसार में लिया। हुरैन तब तक किचन छोड़ के जा चुकी थी। कैसी है मेरी जान, जाने जहाँ। हदीद ने मोहब्बत से उनके माथे पे बोसा दिया। बिल्कुल ठीक। और मेरा बेटा? उन्होंने निहायत मोहब्बत से उसको देखा। बिल्कुल फिट। अब जल्दी से कुछ खाने को दे, बहुत भूख लग रही है। अपनी बीवी से को वही निकाल कर दे। सायरा बेगम को असल मौजू की तरफ आने का मौका मिला। प्लीज मम्मी, नो अर्लीवेंट डिस्कशन। मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी रिलैक्स करने के लिए लेकर आया हूँ, आपका बहुनामा सुनने के लिए नहीं। हदीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हदीद, क्यों माँ को इस उम्र में जलील करवाने पर तुले हुए हो? यकीन करो बहुत अच्छी बच्ची है, तुम एक मर्तबा उसकी जानिब तवज्जो करके तो देखो। उन्होंने हदीद का नाश्ता बनाते हुए उसे कायल करने की कोशिश की। मम्मी, क्या आप चाहती हैं कि मैं छुट्टियां कैंसिल करवा कर वापस चला जाऊं? ये सब मैंने आपको करने को नहीं कहा था। अब नाश्ता मिलेगा या भूखा चला जाऊं? और वैसे भी आपकी बहू को हर चीज तो मिल रही है यहाँ, इवन योर एक्सपोइंट स्पोर्ट, व्हाट एल्स शी वांट। हदीद के गुस्से को देखते उन्होंने उसे समझाने का इरादा बदलकर फिल वक्त के लिए खामोशी अख्तियार की।
सायरा बेगम और रियाज साहब के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सब शादीशुदा थे। बड़ा बेटा फरीद और उसकी बीवी आसिया के 2 बच्चे शायान और रुमान थे। दूसरे नंबर पर तल्हा और उसकी बीवी बीना के भी 2 बच्चे, एक बेटा फौजान और बेटी इशाल थे। बेटी राफिया और उसका शौहर दानियाल ऑस्ट्रेलिया में थे और उनका एक ही बेटा अबू बकर था और हदीद सबसे छोटा था। 2 घर एक जैसे साथ-साथ बनाकर बीच की दीवार गिरा दी थी। सायरा बेगम के पोर्शन में नीचे वो और हदीद के डैडी थे और ऊपर का पोर्शन अब हदीद और हुरैन के ज़ेरे इस्तेमाल था। जबकि दूसरे घर में नीचे का पोर्शन फरीद की फैमिली के पास और ऊपर का पोर्शन तलहा की फैमिली के पास था। किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए हुरैन को रात होने वाली तलखी पूरी शिद्दत से याद आई। एकदम उसको ख्याल आया कि अगर जो हदीद ने अपनी तमाम तर नापसंदगी का मुजाहरा कर दिया और ज़रा सी भी भिनक उसके माँ बाप तक पहुंच गई तो क्या होगा, क्योंकि हदीद की मम्मी ने घर के किसी फर्द को इन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग की हवा तक नहीं लगने दी थी। अभी वो यही सोच रही थी कि कैसे हदीद को अपनी बेरुखी कंट्रोल करने का कहे कि बीना भाभी लाउंज में आई और भाई सैया जी आ गए हैं, उन्होंने शरारत से कहा। हुरैन बस मुस्कुरा कर रह गई। एकदम से उसे कुछ ख्याल आया। जल्दी से एक पेपर पे कुछ लिखा, फिर शायान को पास बुलाया। किचन में हदीद चाचू हैं, जाओ इनको देकर आओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शायान किचन की तरफ भागा। चाचू ये ले लें। ये क्या है? चाची ने दिया है। हदीद ने हैरान होते हुए पकड़ा, जिस पर लिखा था, मुझे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटों को हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है, मगर बाकी सबको देखकर तो इस बात पर यकीन आता है, मगर आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे दरमियान जो भी इश्यूज हैं, उम्मीद करती हूँ कि सबके दरमियान आप अपनी तरबियत को सवालिया निशान नहीं बनने देंगे। हदीद ने वो पेपर तय करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घूंट घूंट चाय अंदर उतारने लगा। नाश्ता खत्म करते ही हदीद अपने जिगरी यार हसन से मिलने चला गया और सुना, हालात वैसे ही हैं या कुछ तरक्की हुई? हसन चूंकि हदीद की शादी ना करने वाली सोच से वाकिफ था और इस बात से भी वाकिफ था कि हदीद ने हुरैन को कबूल नहीं किया, सो उसको छेड़ते हुए पूछा। हदीद ने रात वाली तलखी मनो अन सुनाई। हसन कुछ हैरत और अफसोस से उसे देखने लगा। खबीस इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे नाम पर इस घर में मौजूद हैं और तू, मुझे तुझसे इतनी सेल्फिशनेस की उम्मीद नहीं थी। तुम भी उसकी वकालत शुरू कर दो। मेरी समझ से बाहर है कि सब मुझे समझाते हैं, आखिर मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता? मुझे किसी ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं, हदीद ने झुंझलाते हुए कहा। हदीद, यार अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। और फिर यहाँ तक हुक्म है कि जैसे ही लड़का या लड़की बालिग हों तो उनकी शादी कर दो, तो कुदरत और नसीब को गलत कह रहा है। बकवास न कर, नाउज़ुबिल्ला, मैंने ऐसा नहीं कहा। हदीद ने अपना दिफा करने की कोशिश की। तो तू ये मान क्यों नहीं लेता कि वो लड़की तेरे नसीब में ही थी? जब मेरा दिल उसकी जानिब खींच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हदीद ने अपनी तरफ से दलील दी। यार तुझे उसके साथ अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 24 घंटे। क्या इतना वक्त किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बहुत है? थोड़ा सा टाइम दे इस रिश्ते को। वैसे सच बता, तुझे भाभी कैसी लगी? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके आखिरी सवाल पे हुरैन का सुरापा नजरों के सामने आया। शरारत से हसन को देखा और बोला, वेम्पायर, बकवास न कर, सीधी तरह बता। हसन ने बमुश्किल उसकी बात पर अपना कहका रोका। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सो अपनी बीवी की खूबसूरती मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं, इसी फिट्टे मुंह से जिससे तू भाभी की बुराइयां कर रहा है। हसन ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। अब बकवास करता जाएगा या कुछ बकेगा भी? हसन ने जिद होते हुए पूछा। यार है तो तोप चीज, मगर मैं फिर भी फिलहाल अपने दिल को उसकी जानिब आमादा नहीं कर पा रहा। जानी, मुझे यकीन है कि जब अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं तो वो दिल भी मिलाएगा। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना। हदीद उसकी बात पर खामोशी रहा। ये अगले दिन की बात है। रात में हदीद बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा कि उस पे पासवर्ड लगा देखकर उसका दिमाग खोल गया। गुस्से से सामने पीच कलर के लिनन के सूट में बैठी हुरैन को देखा, जो कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल पर गाने सुनने में मगन थी, साथ ही किसी डाइजेस्ट का मुताला जारी था। हदीद गुस्से में खौलता उसके सर पे जा पहुंचा। हुरैन ने जैसे ही महसूस किया तो बेअख्तियार सर उठाया। हैरत से हदीद की गौसीली शक्ल देखी। बेअख्तियार हैंड फ्री उतारी। शररबार निगाहों से उसे देखते हुए हदीद ने पूछा, मेरे लैपटॉप पे आपने पासवर्ड क्यों लगाया है? आपने मुझसे कुछ कहा? मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुरैन बोली। नहीं, दीवारों से। हदीद ने दांत पीसते हुए कहा। अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएं, ये तो बहुत खतरनाक इलामत है। हुरैन ने तासुब से कहते हुए वापस हैंड फ्री लगाना चाही कि हदीद ने उसके हाथ से खींची और बेड पे फेंकी। हुरैन का सदमे से मुंह खुला रह गया। हाउ डे यू, वो गुस्से से कहते उसके मुकाबिल खड़ी हुई। यस, हाउ डे यू टू टच माई लैपटॉप। और ये हैंड फ्री वहां फेंकने का मकसद ये बावर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो यही हशर होगा।
कीप इट इन योर माइंड। अब जल्दी से पासवर्ड बनाएं। हदीद ने उसे वार्न किया, मगर वो भी हुरैन थी। इतनी आसानी से कैसे पीछे हटती? पासवर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप वो हैंड फ्री उठाकर मुझे देंगे, नहीं तो मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। हुरैन ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसे चैलेंज किया। हदीद ने लब भींच कर उसके अंदाज देखे, मुस्कुराहट होंठों में दबाकर मुड़ा। हुरैन ने अपनी बहादुरी पर खुद को गायबाना थपकी दी। जैसे ही हुरैन ने हैंड फ्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कलाई हदीद के फौलादी हाथ में आ गई, जिसको उसने मोड़कर उसकी पुश्त पर लगा दी और उसके चेहरे के पास होकर बोला, निहायत चीप तरीका ढूंढा है आपने मेरी तवज्जो हासिल करने का। क्या क्या? चीप होंगे आप, बल्कि चिपिस्टर। चीपू कहीं के। छोड़े मेरा हाथ, बताती हूँ पासवर्ड। वो दर्द से चिल्लाई, आइंदा चैलेंज नहीं करना। हदीद ने उसे छोड़ते हुए कहा। दहशतगर्द। हुरैन तेजी से पासवर्ड पेपर पर लिखते हुए बुड़बड़ाई। अभी वो हुरैन से मगजमारी करके फारिग हुआ था कि हसन के मोबाइल पर कॉल आ गई। आ गया मिस्टर वकील। जब से हसन ने हुरैन की वकालत शुरू की थी तब से हदीद ने उसका नाम मिस्टर वकील रख दिया था। फरमाए। ना सलाम ना दुआ, शादी करके तो तेरा दिमाग सातवें आसमां पर चला गया है। वैसे सॉरी यार, कहीं रात के इस वक्त मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? हसन ने उसे शर्म दिलाते बाद में शरारत से छेड़ा। जी हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, हदीद ने गुस्से से उसे जवाब दिया और चलता हुआ कमरे के आगे बनी बालकनी में जा खड़ा हुआ। ओए होए, लगता है भाभी से सेटिंग हो गई है, क्या बहुत बिजी था? हसन शरारत करने से बाज नहीं आया। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त सेटिंग हो गई है। लोगों को दिन में तारे नजर आते हैं और मुझे रात में सूरज नजर आ गया है। हदीद ने जले दिल से कहा। क्या तू इतना ही जोली शादी से पहले था या भाभी के जेरे असर रहने की वजह से हो गया है? नहीं जानी, जोली तो मैं पहले था, अब तो दहशतगर्द बन गया हूँ। मुस्कुराते हुए उसे हुरैन का दिया हुआ लकब याद आया। ये भाभी ने कहा तुझे? हसन ने उसका तमस्खुर उड़ाया। जिसने भी कहा, तू अब फोन बंद कर। और साथ ही हदीद ने लाइन काट दी। हदीद ने सायरा बेगम की गोद में सर रखते हुए थके हुए लहजे में कहा, मम्मी चाय पिलवा दें प्लीज। सुबह से तुम थे कहाँ? उन्होंने हुरैन को आवाज देकर चाय लाने का कहा, साथ साथ उसके बालों में हाथ फेर रही थी। बस हसन का कुछ काम था, उसी में देर हो गई। उसने उनके हाथों की नरमी महसूस करते हुए कहा, वलीमे के लिए तो तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे, सो आज हुरैन के पेरेंट्स ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। हदीद ने बुरा सा मुंह बनाया। चलो, अब क्या मेरा जाना जरूरी है वहाँ? हदीद ने उकताहट से कहा। हदीद, बहुत बुरी बात है बेटा, खुद एहसास करो। वो लड़की सुबह से शाम हमारे साथ खुश इखलाकी से रहती है, हमारी खिदमत करती है। तुम्हारा दिल डरा नहीं कांपता ये सोच करके कयामत के दिन क्या कहोगे? जिस रिश्ते को अल्लाह और रसूल के नाम पर कायम किया, उसके साथ ये सब किया। उन्होंने तासुब से कहा। मैंने नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती उसको मेरे साथ बांधा है। जिंदगी असाब हो गई है मेरी। गुस्से से वो उनकी गोद से उठते हुए बोला। तेजी से जाने लगा। इतने में हुरैन अंदर दाखिल हुई कि कब के साथ हदीद की आखिरी जुमले उसके कानों में पड़े थे। कहीं अंदर बहुत शदीद दर्द उठा था। दोनों का तसादम होने वाला था कि हुरैन ने ब्रेक लगाया। इसी चक्कर में चाय का कप उसके हाथ से गिर गया। कुछ चाय के छींटे हदीद के ऊपर गिरे और कुछ हुरैन के हाथ पर। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? हदीद ने अपनी सारी खौलन हुरैन पर निकाली। वो जो पहले ही मुजरिमों की तरह खड़ी थी, उसने सर उठाया, आंसू भरी काली भंवर सी आंखें। हदीद ने हदीद को देखा। सॉरी, हुरैन फकत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हदीद, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कोई कमी रह गई, जो आज तुम एक लड़की की इज्जत करने से कासिर हो। मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लपकी। और हदीद, वो तो जैसे अब वहां से हिलने से कासिर था। उसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झंझलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर उसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हदीद की हस्ती को हिलाकर रख गया। वो खुद को उसकी काली भंवर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा ना पाया। उसे लगा अब वो इन लम्हों के शहर से कभी निकल नहीं सकेगा। हदीद, रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते पूछा, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस निहायत वजीह लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसनद पे बिठाने के लिए हदीद के सब उज़र जुटलाने पे तुला था। इसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हदीद के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बिखेरती लाउंज में आई। बगैर हदीद पर तवज्जो दिए मम्मी के साथ पोर्टिको की तरफ बढ़ी। ओहो ब्लैक ब्यूटीज। उनके बाहर आते ही बीना भाभी शरारत से बोली, आप क्यों जेलस हो रही हैं? हदीद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हुरैन तो हदीद के अपने जिक्र पे इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई। भाई, हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतजार में हूँ कि कब तुम्हारे च्याऊं प्याऊं आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा बड़ा फील करना चाहती हूँ।
हुरैन का दिल किया उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हेजल ग्रीन आईज के फोकस में रखा। आपको इतना शौक है तो मैं आज से आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पे सबने मुश्तरका कहका लगाया। चले भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने जबरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बैठकर, हदीद ने बैक व्यू मिरर पीछे बैठी हुरैन पर सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी इनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही स्टीयर ऑन किया, उसे लगा उसी के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शीजा ने इनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्समा बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में इंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आईं। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा। नजरें मिलाने से गुरेज किया क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस जरा लिबर्टी तक जा रहे हैं। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूं? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हदीद ने खजल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा, मेरी बीवी को गुमा दें। वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम ना कभी देखा ना सुना। अब तो और देर से इसको लेकर आऊंगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। कल से अब तक जितना खुद को झुटला रहा था, उतना ही दिल इस चेहरे से हटने को इनकारी था। और वो ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसको इनके पीछे जाना पड़ जाएगा। हेलो, हदीद ने जैसे ही फोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज आई। बीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने छूटते ही पूछा। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों? खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम इन्हें ट्रेस करो प्लीज। ओके। हदीद अब इनको क्या बताता कि इनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया लेकिन बिजी टोन जाती रही। फिर भाभी को, लेकिन निदारद। उसे लगा जमीन उसके पाँव के नीचे से सिरकती जा रही है। मम्मी, मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सायरा बेगम को कहते हुए मार्केट की तरफ निकला। साथ साथ दोनों को कॉल करता जा रहा था। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपने मकसद सोच की खातिर सजा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या? मुझे एक चांस दे दें सब ठीक करने का, मैं इससे 1000 बार माफ़ी मांग लूंगा। गिव मी वन लास्ट चांस। बेबसी की इंतहा थी उसके लिए। कार उड़ाता हुआ वो वहां पहुंचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पे कॉल फिर से मिलाई तो उठा ली गई। कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ मेट्रो के सामने। लेकिन हदीद, हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुनकर वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात सुनकर लगा जिस्म में से रूह निकल गई हो। मैं आ रहा हूँ, मुश्किल से वो बोला था। भाभी के पास पहुंचा। आप दोनों थी कहाँ? हम इसी प्लाजा में थे जब ये सब हुआ। वहीं घबराहट में हाथ छूट गया। भाभी ने रोते हुए बताकर हदीद की परेशानी में इजाफा किया। ओके, आप ये चाबी लेकर जाकर गाड़ी में बैठें, मैं चेक करता हूँ। इनको चाबी पकड़ाकर वो इसी बिल्डिंग की जानिब बढ़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। वहां हर जाने पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक एहलकार ने रोका। उसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विसेज वाला कार्ड दिखाया तो उसने रास्ता दे दिया। साथ साथ वो हुरैन को कॉल मिला रहा था। चौथी मर्तबा में फोन उठा लिया गया। हेलो। हुरैन की नहीफ सी आवाज सुनकर उसे लगा अंदर तक सुकून उतर गया है। कहाँ हो हूर? मैं हदीद आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। हदीद, मैं शायद थर्ड फ्लोर पे। और साथ ही खामोशी छा गई। हदीद परेशानी से भागते हुए उसी फ्लोर पे पहुंचा। ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह उसके पास पहुंचा दे। अभी वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नजर आ गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हदीद ने उसे जल्दी से अपनी कीमती मता की तरह बाजुओं में उठाया और नीचे की तरफ भागा। प्लीज डॉक्टर, क्लियरली बता दें कि हुर के बचने के चांसेस कितने हैं? हदीद ने दिल कड़ा करके डॉक्टर से पूछा। सारा घर हॉस्पिटल आ गया था, हर कोई दुआ कर रहा था। देखो यंग मैन,
ब्लीडिंग और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुआ करें कि इसी में इसे होश आ जाए, अदरवाइज यू आर बेटर नो। डॉक्टर की आखिरी बात पे हदीद ने होंठ भींच कर चेहरा नीचे करके अपने आंसुओं को बमुश्किल बाहर आने से रोका। और फिर सबकी दुआओं से अल्लाह ने उसको एक नई जिंदगी दे दी। सब उससे मिलने गए सवाए हदीद के। अब आपको रूबरू मिलूंगा अपनी सब गलतियों की माफी मांग कर। एक हफ्ता हॉस्पिटल रहकर जब हुरैन घर आई तो सायरा बेगम ने उसको अपने कमरे में ठहरा लिया, क्योंकि कमजोरी की वजह से वो अभी सीढ़ियां नहीं चल सकती थी। और ये दिन हदीद पर निहायत कड़े गुजरे थे। आखिर एक दिन वो मम्मी से बात करने उनके पीछे किचन में जा पहुंचा। अब क्या सारी जिंदगी अपनी बहू को अपने पास रखेंगी या मुझे वापस भी करेंगी? दिल तो नहीं कर रहा उसे तुम्हारे हवाले करने का। मम्मी ने उसकी झुंझलाहट का मजा लिया। तो फिर आप ऐसे करें, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं और मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आपके तो कोई इरादे नहीं लग रहे ना अपने मियाँ के पास जाने के, ना मेरी बीवी को उसके मियाँ के पास आने देने के। निहायत जलकर उनको मशवरा दिया गया। इतने औताले क्यों हो रहे हो? वो मुसलसल हदीद की हालत का मजा ले रही थी। आप सालिम समाज ना बने। जब उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था तब आपने मेरे दिन रात कान खाए हुए थे। अब जब उसकी जानिब आना चाहता हूँ तो आपने हमारा पर्दा करवा दिया है। अच्छा बाबा, भेज दूंगी आज। उसकी बेताबियों पर हंसते हुए उन्होंने हुरैन को भेजने का वादा किया। अच्छी भली मैं मम्मी के पास थी, पता नहीं क्या सूजी ने इस कमरे में जाने का हुक्म दे दिया जहां का मालिक मुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस कदर घूरता है जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो उसका। हुरैन बुड़बुड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर हदीद के रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही नजर बालकनी में खड़े हदीद पर पड़ी। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। खटके की आवाज पे पीछे मुड़कर देखा। हुरैन को आते देखकर आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए आहिस्ता आहिस्ता चलते उसकी जानिब बढ़ा, जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। तबीयत कैसी है? मोहब्बतों से भरे लहजे में सवाल हुआ। जी ठीक, हुरैन ने झुके सर के साथ जवाब दिया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हदीद ने इजाजत ली। जी। फिर मुख्तसर जवाब। हदीद बेड के किनारे टिक गया। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? जी। हदीद की गैर मुतवक्को बात ने हुरैन के हवास सल्ब कर दिए थे। क्या कोई मजबूरी या तर्स? हुरैन उसके साहब का रवैये की वजह से बस यही सोच सकी। मैं चाहता हूं कि हम पिछली बातें भुलाकर इस रिश्ते को वैसे ही गुजारें जैसे इसका हक है। हदीद की मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्यों? अब मुझ में कौन से सुर्ख आपके पर लग गए हैं? उसने गुस्से से हदीद को घूरा। मुझे नहीं पता कब कैसे, हाँ, मगर इस रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया है। वाह, सीरियसली? दाद देनी पड़ेगी आपको। एक नया और घटिया खेल खेलना चाहते हैं आप। मोहब्बत के जाल में फंसाकर मजीद तमाशा बनाना चाहते हैं मुझे। शायद आपको अपने अल्फाज भूल गए हों, मगर मुझे अच्छी तरह याद है आपने ही कहा था ना कि जिस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। फिर अब ये सब क्यों? वो तो जैसे गुस्से से फट पड़ी। मैं अपने सब अल्फाज का मदावा करूंगा। हदीद ने उसकी काली भंवर सी आंखों को अपनी ग्रे ग्रीन आंखों में जकड़ा। किस किस बात का मदावा करेंगे? मुझे इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। कितने आराम से आपने कह दिया सब भूल जाओ। मैं वो तज़हीक कभी नहीं भूल सकती। आपके लिए आसान है भूलना, क्योंकि आपने नफरत नहीं सही, मगर मैं इससे आगे उससे बोला ना गया। ना जाने क्या क्या याद करके उसके बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। मगर वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बाएं हाथ की कलाई हदीद के हाथ में आ गई। हैरत के मारे मुड़ी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग स्वीट हार्ट। हदीद की बात पर हैरत की जगह इश्तियाल ने ले ली और हुरैन का दायां हाथ हदीद के गाल पे घूम गया। वो तो इस शेरनी के तेवर देखकर शशदर रह गया। हाउ डे यू टू टच मी? मैं वही हूँ जिसने आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा। मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि जब जिसका दिल चाहे मुझे रौंद दे। हदीद को वार्न करती वो कमरे से बाहर निकल गई। क्या वाकई कुछ दिन पहले इसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था? हुरैन ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे, फिर भी उसने हार ना मानने का मुसम्मम इरादा किया।
اگلے دن صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا آئی تھی اب خوفزدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حرین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی، اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتا تو ہے میرے کام کا نیچر ہی ایسے ہے، کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی، آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پہ بیٹھے جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حرین نے نظریں اٹھائیں۔ حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حرین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئیں اور جس کی وجہ سے حرین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حرین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان چلا جا رہا تھا۔ حرین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ حرین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حرین اس سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سو جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب ملیں بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حرین کے گرد سحر باندھا اور اس کی مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حرین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ سو میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حرین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حرین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خداحافظ کہہ کر مڑا، حرین نے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حرین اس کی شرارت سمجھتے لب بھیج گئی۔ آئی نو ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیے۔ حدید نے سرد آہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر اب اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں۔ حرین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخود رہا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا، سینے پر ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں محو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں۔ دوسری کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حرین کو حیران کیا۔ حور جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں اس کی بدولت
اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں۔ سو اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا۔ اگلے دن صبح میں ہی شایان ایک بکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے دیکھے۔ یہ الفاظ اس کے فیورٹ سانگ بٹوین اس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ الفاظ اس کی زندگی کے حالات سے اتنی مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے فون چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ سو بخیر سویٹ ہارٹ، امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آیا ہوں دل ہی نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی بہت یاد آ رہی ہے۔ حدید کے لہجے کی سرسراتی مسکراہٹ اس کو اس میسج میں صاف محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پر ہنسی آ رہی ہے کہ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے۔ امید کرتا ہوں کہ ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گی۔ سویٹ وائفی، ٹیک کیئر، بائے۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بکے آتا اور حورین کے موبائل پر ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرائیں۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن کے ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت نہیں نا۔ دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب نہیں جوڑ دیے، اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی۔ اب جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرو، انا کی دیوار مت کھڑی کرو۔ بیٹا، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تمہارا رشتہ تو ابھی کہنے سننے کے مراحل میں، اسے خاموشی کی نظر مت کرو۔ میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حورین نے فوراً ان کی گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کا مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے اسے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی کہ حدید روز اسے فون کرتا ہے مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حورین نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔ ممی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بیل پر دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم، کپ کپاتے لبوں سے بمشکل اس نے سلام کیا۔ دوسری جانب کتنی ہی لمحے حدید کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا واقعی اس نے حورین کی آواز سن لی ہے۔ Is that really you؟ بے یقینی سے حدید نے حورین سے تصدیق چاہی۔ Yes, it's me، حورین، your so called wife۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے تھے، حالانکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن حدید کے جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اسے اپنی ناقدری شدت سے یاد آئی۔ ایسے ہی تو میں آپ کو شیرنی نہیں کہتا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میموری غضب کی ہے۔ حدید نے اسے سو کالڈ وائف کہنے پر چوٹ کی۔ آپ نے کیا یہی سب بتانا تھا؟ حورین کو اس کی خوش مزاجی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہیں، یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک اور تھپڑ کھانے آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے نے حورین کے دل کی دنیا درہم برہم کر دی۔ اس تھپڑ کے لیے میں کبھی آپ کو سوری نہیں کہوں گی۔ سو اس کو یاد دلا کر آپ
जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो गई। हुरैन ने अपना लहजा सख्त और मजबूत करके कपकपाहट छुपाने की कोशिश की। कौन काफिर आपको शर्मिंदा करना चाहता है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर हाथ पकड़ने से बढ़कर कोई जसारत की तो क्या आपका रिएक्शन इससे भी बढ़कर खतरनाक होगा? हदीद की सरगोशी नुमा आवाज ने हुरैन के छक्के छुड़ाए। आप मुझसे इतनी चीप बातें मत करें, हुरैन ने उसे टोकते हुए कहा। तो फिर किससे करूं हनी? असूलन तो ये बातें बीवी से ही करनी जायज हैं, मगर आप हाथ ही नहीं आ रही। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी इतनी ही दूरी पे? मैंने तो आपको कहा था कि दूसरी शादी कर लें, मुझसे तवक्को मत रखें। हुरैन की बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। और अगर मैं आपकी ऑफर रिजेक्ट कर दूं, क्या एक भी मौका रूबरू फिर से माजरत का नहीं मिल सकता? आई बिट के एक मुझे मेरे तरीके से मौका दें तो मैं आपको मना लूंगा। उसके लहजे में छुपी बात का मफहूम समझते हुरैन के दिल की धड़कन तेज हुई। हुरैन, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे यूं महसूस हुआ था कि जैसे मैंने आपको खो दिया है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने आपको मुझे लौटा दिया और मुझे मौका मिला इस रिश्ते की सच्चाई जानी। क्या आप भी किसी ऐसे ही एक्सीडेंट की मुंतजिर हैं? और अगर आपकी किस्मत मेरे जितनी अच्छी ना हुई तो? अल्लाह ना करे। हदीद की बात का मफहूम समझते वो बेअख्तियार दिल थाम गई। सीरियसली लव इट, इसका मतलब है मेरी मोहब्बत ने हल्की हल्की दस्तक दी है। अदरवाइज मैं तो आमीन सुनने का मुंतजर था। हदीद ने उसकी बेरुखी पर चोट की। इतनी भी संगदिल नहीं हूं, हुरैन ने नाराजगी से कहा। इसका मतलब है कि अगर कल की फ्लाइट पकड़कर आपके पास आ जाऊं तो आप मुझे माजरत करने का और इन सब लम्हों की रौदाद सुनाने का मौका देंगी। जब जब आप मुझे अच्छी लगी, इतनी कि आपसे मोहब्बत हो गई। हदीद की बातों ने उसकी पेशानी अर्क आलूद कर दी। मम्मी ने आज बहुत समझाया, सो मैंने सोचा आपको एक मौका देना चाहिए। आप आ जाएं। हदीद की मजीद कन्फ्यूजन करने वाली बातों से बचने के लिए वो जल्दी से बोली। मम्मी का मुंह तो मैं आते ही चूमूंगा, और जिन लोगों ने मुझे इजाजत दी है इनके साथ क्या करना चाहिए? हदीद की बात की गहराई तक पहुंचते ही हुरैन ने चीपो कहकर कॉल बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद हुरैन को व्हाट्सएप पर हदीद का वॉइस मैसेज मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे जज्बे कल अपना आप मनवा लेंगे। आज रात तो नींद आनी मुश्किल है। अब अपनी सारी नींदें आपके कुर्ब में पूरी करने की ख्वाहिश है। हुरैन ने अपना चेहरा शर्म से सुर्ख होता महसूस किया। हदीद को गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। साथ ही हदीद ने स्माइली और किस वाला इमोजी सेंड किया, और अगला मैसेज पढ़कर हुरैन अपने आंसू रोक नहीं पाई। प्लीज रिप्लेस द वर्ड्स माई सो कॉल्ड वाइफ विद द वर्ड माई स्वीट वाइफी। हीरोइन कितनी देर इस मैसेज से नजरें नहीं हटा सकी। आज जिस तरह आपकी हर बात पे धड़कते हुए मेरे दिल ने मुझसे बेवफाई की है, तो मुझे यकीन आ गया है कि ये दिल आपकी हर बात पर ईमान ले आया है और उसने आपकी माजरत भी कबूल कर ली। तो फिर ये नाम निहाद अना किस बात की? हुरैन ने आंसू साफ किए और हदीद से कल होने वाली मुलाकात का सोचते आंखें बंद करके लेट गई। रात में ही वो हसन को अपनी आमद के बारे में बता चुका था, मगर घर में किसी को नहीं बताया था। सबको वो सरप्राइज देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि वहां पहुंचकर सरप्राइज्ड रह जाएगा। बैग हाथ में लिए वो शाम 7 बजे जब दाखिल हुआ तो सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। हैरान होता जैसे ही वो मम्मी के रूम में दाखिल हुआ तो सबको वहां देखकर मुतमईन हुआ। अंदर दाखिल होते उसने सलाम किया, मगर उसकी सरप्राइज्ड आमद पर भी हमेशा वाला जोशो खरोश मफकूद था। ना वो दुश्मन जान नजर आ रही थी। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस बल्कि परेशान लग रहे हैं? हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो असल में, तुम बैठ जाओ पहले प्लीज। फरीद भाई जो उसके पास ही खड़े थे कुछ कहते रुके, फिर उसे बेड पे मम्मी के बराबर बैठने का इशारा किया। हुआ क्या है? बैठते हुए वो फकत इतना ही कह सका,
परेशानी बढ़ती ही जा रही। एक्चुअली दोपहर में हुरैन को ड्राइवर मार्केट लेकर गया था, मगर वहां किसी ने उसको किडनैप कर लिया। फरीद भाई की बात सुनकर वो सन्नाटों में चला गया। मम्मी, उसने बेयकीन नजरों से मम्मी को, फिर बारी बारी सबको देखा, जैसे कोई तो इस बात के गलत होने की तस्दीक करे, मगर सबने नजरें चुराईं। ये सब दोपहर को हुआ और आप मुझे अब बता रहे हैं? मर गया था क्या मैं, जो एक कॉल नहीं कर सकते थे? वो खड़े होते फरीद भाई के साथ उलझ पड़ा। तुम्हें बहुत ट्रेस किया, लेकिन शायद तुम्हारी साइड पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। किडनैपर की कॉल्स आई हैं और हर मर्तबा वो सिर्फ तुमसे मिलने की डिमांड कर रहा है। कहता है तुम उससे मिलोगे तो वो हुरैन को छोड़ेगा। क्या तुम आजकल कोई खतरनाक केस डील कर रहे हो? फरीद भाई ने तफसील बताते हुए परेशानी से इस्तफसार किया। उसे याद आया कि सुबह से उसके एरिया के मोबाइल सर्विस बंद थी और केस तो बहुत सारे थे जिन पर वो काम कर रहा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि किडनैपर की कॉल आ गई। हदीद ने लपक कर फोन उठाया, साथ ही नंबर चेक किया जो किसी पीसीओ का था। हेलो। ओह, कच्चे धागे से खींचे सरकार आ ही गए। वह जो कोई था, हदीद ने पहली मर्तबा उसकी आवाज सुनी थी। तुम हो कौन और इस सब बकवास का मकसद? हदीद गुस्से से फुंकारा। धीरज मेरी जान, मिलोगे तो सब बताएंगे, लेकिन याद रखना कोई होशियारी की तो अब तक तो तेरी बीवी की जान महफूज है। इसके बाद की जिम्मेदारी हम पे नहीं। शट अप यू बास्टर्ड। अगर मेरी बीवी को जरा से भी खराश आई तो मैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? हदीद गुस्से से चिल्ला उठा। ये कमबख्त मोहब्बत है ही ऐसी, बस एक मुलाकात मेरी जान। बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे, सोचा आज तुम्हें बुलाकर देखें कि कितने पानी में हो। खैर, 8:30 पर आ जाओ, वहीं बताएंगे तुमसे क्या खिदमत चाहिए, और अगर लेट हुए तो आगे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मतलूबा जगह बताकर किडनैपर ने फौरन फोन बंद किया। इसीलिए मैं कहती थी ये प्रोफेशन मत ज्वाइन करो। हदीद ने चूंकि माइक ऑन किया हुआ था, सो सब ने एक एक लफ्ज सुन लिया था। मम्मी, हदीद पे गुस्सा निकालकर सर पकड़कर बैठ गई। हदीद ने गन लोड की और निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि किडनैपर की बताई गई जगह कोई फार्म हाउस था जो शहर से दूर था और जाते टाइम भी लग सकता था, और हदीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेटा, तहम्मुल से रहना, मम्मी उसे समझाते हुए बोली, जिसकी हस्ती जज्नों की जद में थी। गाड़ी उड़ाता वो मतलूबा जगह पहुंचा। फार्म हाउस की जिस सिमत हदीद को आने को कहा गया था, वहां बहुत मध्यम रोशनी थी। हदीद जैसे ही आगे बढ़ा तो एक जानिब से उसे एक मर्द और औरत टेबल के गिर्द बैठे नजर आए, मगर रोशनी कम होने की वजह से उनके साए नजर आ रहे थे। जैसे ही आदमी ने हदीद को आते देखा, वो अपनी जगह छोड़कर हदीद की जानिब बढ़ा। औरत ने भी उसकी पैरवी की। उनको अपनी जानिब बढ़ते देखकर हदीद ने जींस की पॉकेट में मौजूद पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की। मान गए भाई जनाब तो इश्क में गोडे गोडे डूबे हैं। मर्द की आवाज पहचान कर हदीद के मुंह से हैरत के बाइस बस इतना निकला, हसन। हसन ने मोबाइल पर किसी को लाइट्स ऑन करने का कहा। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, हुरैन और हसन का चेहरा नजर आया। हदीद तो हक्का बक्का था। मान गए ना बेटा, कैसे हिला के रख दिया है तुझे? हसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, जो अभी तक हैरत की तस्वीर बना था। जैसे ही उसके हवास ने काम किया, दो गुस्से से करीब आते हसन को पंच मारने की कोशिश की। वो अगर मुतवज्जो ना होता तो हदीद का पंच उसका चेहरा सुजा देता। हसन बचकर सीधा हुआ और उसके साथ लिपट गया, मजीद किसी कार्रवाई से बचने के लिए। आई एम रियली सॉरी यार, मगर जितना तूने भाभी को तंग किया है, मैंने सोचा वो तो बदला लेंगी तो मैं ही थोड़ा तेरा दिमाग सीधा कर दूं। हसन ने मुस्कुराते हुए बताया, और हदीद उसकी ढिठाई पर और तैश में आ गया। छोड़, मुझे बताता हूँ मैं तुझे अभी। हदीद हसन की गिरफ्त से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करते बोला, पहले वादा कर तू भाभी के सामने मेरी दुर्गत नहीं बनाएगा। इतना खौफ था तो ये घटिया हरकत क्यों की? और वो मेरे घर वाले और एक ये घर वाली सब तेरे साथ शामिल हो गए। गुस्से से हुरैन को घूरा, जो पहले ही घबरा रही थी। देख यार, सब मेरा प्लान था। जब तूने आने का बताया तब मैंने ये छोटी सी शरारत सोची और फोन पर आवाज बनाकर बोला था ताकि तू पहचान ना सके। कंजूस इंसान,
तुझे एक कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज दिया है। हसन ने उसे छोड़ते इस टेबल की तरफ इशारा किया जहां कुछ देर पहले वो दोनों थे। ये छोटी शरारत है, तुझे मेरी कुछ देर पहले की कंडीशन का अंदाजा नहीं। 2 मरतबा एक्सीडेंट होते होते बचा। हदीद अब तक के गुस्से में था। अच्छा यार सॉरी, नाउ एंजॉय योर डिनर, अब जल्द ही वलीमे का खाना भी खिला दे। हसन अब वहां से निकलने के लिए पर तोल रहा था। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, और भाभी को कुछ मत कहना, वो बड़ी मुश्किल से इस सब के लिए तैयार हुई थी। हदीद से गले मिलते हसन ने सरगोशी की। थैंक्स बडी। हदीद ने उसके सरप्राइज्ड डिनर पर शुक्रिया किया। हसन किसी को फ़ोन पर उनके लिए डिनर सर्व करने का कहते चला गया। हदीद चलता हुआ इस दुश्मन जान की तरफ आया जो वाइट और रेड कंट्रास्ट के नेट के सूट में रोशनियां बिखेर रही थी। हदीद ने बेअख्तियार हाथ बढ़ाकर उसको साथ लगाकर खुद में भींच लिया। हुरैन शशदा रह गई। थैंक्स गॉड, ये सिर्फ एक मजाक था। हदीद ने उसके होने का यकीन करके उसे खुद से अलग करते कहा, फिर उसका हाथ थामे टेबल की जानिब बढ़ा जहां डिनर सर्व हो चुका था। खाना खाने के दौरान भी हदीद की नज़रें उसके चेहरे पर थीं। अब अगर आपने मुझे देखना बंद ना किया तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊंगी। हदीद उसकी घबराहट से महफूज हुआ। मैं अभी तक बेयकीन हूं कि आप मेरे सामने हैं। ख्वाब सा लग रहा है। हदीद की बात सुनकर हुरैन शरारत से मुस्कुराई और उसके टेबल पर रखे हाथ में फॉर्क चुभोया। हदीद ने हाथ खींचते गुस्से और हैरत से उसे देखा। सॉरी। हुरैन शरारत से मजीद मुस्कुराई। घर चलकर बताऊंगा आपको, हदीद ने मसनूई गुस्से से कहा। घर आए तो सब अपने अपने पोर्शंस में जा चुके थे। हदीद उनकी क्लास सुबह लेने का सोचकर हुरैन के साथ अपने रूम में आया। जैसे ही उसने ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए, हदीद ने उसे बाजू से थामकर रोका। क्या मैं इतनी दूर से एक कैंडल लाइट डिनर के लिए आया था? मैं नई जिंदगी शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि हम हर बात क्लियर करके, दिल साफ करके एक दूसरे की जानिब बढ़ें। क्यों नहीं? हुरैन ने नजरें नीचे झुकाकर उसे इजाजत दी। हदीद की मोहब्बत की शिद्दत का ही सोचकर वो कपकपा रही थी, इसीलिए वो सोफे पर बैठाकर उसके साथ बैठा। मैं हमेशा से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे लिए एक समझौते और जिस्मानी ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं था। जब आपसे शादी हुई तो हसन ने समझाया कि ये रिश्ता जिस्म का नहीं रूह का है, मगर मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और यकीनन अल्लाह को मेरा इस रिश्ते का ऐसे तमस्खुर उड़ाना पसंद नहीं आया और उसने मुझे आपकी मोहब्बत में मुब्तला करके मेरी हर सोच झुटला दी। मैं अपने हर बुरे लफ्ज़ और एटीट्यूड के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन जब वो चाय का कप गिरा और आपकी आंसू भरी आंखें, माय गॉड, आई कांट फॉरगेट देम, बस इन्हीं में डूब गया। वो जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसके खामोश होने पर बोली, मैंने खुद को ज़िंदगी में कभी इतना गैर अहम महसूस नहीं किया जितना आपके रवैये से किया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। ऐसा लगता था मैं बेसाहिबा हो गई हूँ। कब से थमे उसके आंसू गालों पर फिसले। स्वीट वाइफी रियली सॉरी। हदीद ने उसके आंसू साफ किए। क्या मैं कोई जसारत कर सकता हूँ? मारेंगी तो नहीं? हदीद ने उसका मूड बेहतर करने के लिए कहा। हाथ भी पकड़ लिया, गले भी लगा लिया। अब मासूम बनकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुरैन ने उस पर चोट की। हदीद का कहका गूंजा। आपके ख्याल में आपने सॉरी कहा और मैं मान गई। हुरैन उसके पास से उठते हुए बोली। हदीद ने हैरत से उसे देखा। जब तक आप यहाँ हैं मैं सोफे पर ही सोऊंगी और आप बेड पर। अब मैं इतना भी रहमदिल नहीं, हदीद ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा और एक लम्हे का भी मौका दिए बगैर हुरैन की कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करके उसे खुद से लगाया। हदीद, ये फाउल है। हुरैन ने हदीद के सीने पर हाथ रखकर बमुश्किल फासला पैदा किया। कैन यू कॉल माई नेम अगेन? हुरैन ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया था। हुरैन ना समझते हुए दोबारा कहा, इतना स्वीट मुझे अपना नाम कभी नहीं लगा। दिल कर रहा है कि अभी हदीद का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि हुरैन ने झट अपना एक हाथ अपने होंठों पे रखा। हदीद ने नासमझी से उसकी ये हरकत देखी, फिर जब समझ आया तो बेअख्तियार कहका बुलंद किया।
نہیں، میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا۔ خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے۔ حرین کی بات پہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا۔ از دیر اینی نیڈ ٹو سے آئی لو یو ناؤ؟ نو، آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے۔ حرین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پہ دھرا تھا۔ حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تھینکس وائفی،